ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਕਟ ਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੋਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਮਾਲਕ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो फिर हर एक नूं ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਹੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਸਵਨ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕਹਿ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
फिर उन्हां जीवां दी ऐसी दृढ़ता हो जाती है। हर एक जीव की यह दृढ़ता नहीं हुंदी। जदों परमेश्वर दया करता है, कृपा करता है किसी जीव के उत्ते, फिर जाके ऐसी दृढ़ता उन्हां दी हुंदी है। इस शब्द विच आपां हुण विचारांगे कि वो किस अवस्था है, किहड़ी अवस्था है। शब्द शुरू करते हाँ। गुर का शब्द रिद अंतर तारै। गुर के शब्द नूं हिरदे च विच बसा लैंदा है, बसा लवे। जिहड़ा किवें बसा लैंदा है? जे उस प्रभु दी दया है, कृपा है। नहीं गुर शब्द नूं हिरदे दे विच क्योंकि विरले वसाउंदे ने। कह सब सकते ने, लै सब सकते ने, पर हिरदे च विरले वसाउंदे ने। वही वसाउंदा है जिस दे उत्ते उस प्रभु की दया हुंदी है, कृपा हुंदी है। पंच जना स्यो संग निवारे। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंज ने, इन्हां तो अपना संग छड़ देवे, इन्हां दा संग छड़ देवे ते गुर दे शब्द नूं हिरदे दे विच बसा लवे। 10 इंद्री कर रखै बस। 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां अपने वस दे विच होण। हत्थां नाल की करना है, पैरां नाल कित्थे चल के जाना है, अखां नाल की देखना है, कन्नां नाल की सुनना है, जेबां दे नाल की बोलना है। इस करके ये सारा ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां ने जिहड़ियां साडे वस दे विच होण। ताकै आत्मा होए प्रकाश। उन्हां दा फिर मन दे विच आत्म प्रकाश हो जाता है। मन ते आत्म एक रूप हो जाते ने। पर उस प्रभु की दया दे नाल ऐसी अवस्था बनती है जिसते आप दया करता है, कृपा करता है, उसकी ये दृढ़ता बनती है। साजन दुष्ट जाकै एक समान है। सज्जन ते दुष्ट दोनों एक समान, दोनों दे विच फर्क नहीं। सज्जन भी ते दुश्मन भी दोनों एक समान। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जो भी बोलना है ज्ञान ही बोलना है। क्योंकि जदों मालिक दे विच हाँ, प्रभु की सिफत सलाह करते हाँ, आत्म दे विच मन ते आत्म एक रूप हो जाते ने। फिर जाके जो भी बोलना है वो तत् ज्ञान जब चौथे पद दे विच ही जीव विचार करता है। क्योंकि बोलन दे सुनने वाले नूं ये लगता है कि त्रै गुणा दी विचार है, लेकिन विचार चौथे पद दी। क्योंकि त्रै गुणा द्वारा त्रै गुणा दी उदाहरण दे के चौथे पद दा विचार समझी जाती है। प्रथाए पढ़ के उसनूं फिर उसनूं चौथे पद विच, क्योंकि चौथे पद विच आकार नहीं है, त्रै गुणा दे विच आकार ने। उदाहरण संसारिक लैके त्रै गुणा दी ते विचार चौथे पद विच हुंदी है। वो फिर सारा ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। इदां ही फिर जदों ज्ञान जिहड़ा है वो ज्ञान बोलना भी है, ज्ञान की गल भी करनी, ते ये ज्ञान कित्थों आउंदा है? उस प्रभु तो जिस ते आप दया करता है, जिस ते कृपा करता है, वो तां ये दृढ़ता आउंदी है। फिर सुनदा भी है, क्योंकि ये नहीं हुंदा कि इस कोल पहला ज्ञान है। क्योंकि ये मालिक जदों दया करता है, आप कृपा करता है, फिर ज्ञान बुलाउंदा भी है ते सुनते भी हाँ। अपने विचार भी जीव आप सुनता है, फिर विचार करवाउंदा भी नाम दी ते सुनदा भी नाम। जेता पेखण तेता ध्यान। जिन्ना भी पेखते ध्यान दे विच, क्योंकि जब एक दृष्ट हो जाता है मन, फिर वो दूजा नहीं है, सारा वही है। इस करके जिन्ना भी देखना है
सारा उसे नूं देखना है। फिर साडे वास्ते सारा कुछ सच हो जाता है। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोह, सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, सारा कुछ फिर सच्चा है। चेता पेखण देता ध्यान। पर ऐसी जिहड़ी है पहले ही अपर हो पंक्ति च विचार चुके हाँ कि यह अवस्था ताई बनती है जिस ते आप प्रभु दया करता है। सहजे जागण सहजे सोए। फिर जागदा है चाहे सौंदा है, क्योंकि सहज दे विच है। जदों सहज प्रगट हो गया चौथा पद, सहज की है चौथा पद प्रकाश। फिर सौंदा भी उस सहज विच, जागदा भी सहज विच। जदों देखदे जिथे देखदे सहज ही है, क्योंकि दूजा है ही कोई नहीं। फिर चौथा पद ही है, फिर परमेश्वर ही है। दूजा महाराज कहते कोई नहीं है। ना हुण तक होया है ते ना होना है, पर जदों दृढ़ता हो जाती है। सहजे होता जाए सो है। जो भी हुंदा है माड़ा चंगा जो है, पता है कि उसके भाणे च हो रहा है, उसकी दृष्टि च हो रहा है। तो जो भी हुंदा है फिर एक है कि जो भी करदा वही करता है, उसे दी दया है। सहज वैराग सहजे ही हसना। जे वैराग है वो भी सहज दे विच ही, ते हसना भी सहज दे विच, क्योंकि दूजा है ही कोई नहीं है। सहजे चुप सहजे ही जपना। जे चुप है फिर भी सहज नूं देखता है, क्योंकि सहज दे विच वासा है। जे कुछ जपदा है फिर भी उस दे विच ही करता। जे बोलदा है फिर भी उस दे विच ही है, क्योंकि फिर दूजा कोई नहीं है। पर यह अवस्था दृढ़ता है जिहड़ी ताई बनती है जे उस प्रभु की दया हुंदी है, उसकी कृपा हुंदी है। सहजे भोजन सहजे पाओ। तो जो भी खांदे शरीर करके भी उहदे विच ही बैठे सकते हैं, ते मन करके भी वो भोजन मनता उसका अखंड बन ही जाता। अखंड कीर्तन ते जो भी अपने तन का भी है वो भी उहदे विच ही जीव करता है, प्यार करता है, उसदे विच ही है। सहजे मिट्यो सगल दोहराओ। सहज रह के ही फिर सारा जो बुराई है खत्म हो जाती है। सहजे हुआ साधु संग। हुण सहज प्रगट किवें हुंदा है? जदों साधु जनां दा संग हुंदा है, क्योंकि जिस ते दया करता है साधु दा संग भी उसे नूं हुंदा है। जदों साडा जीवन जिहड़ा है मालक खुश हुंदा है, फिर साधु दा संग बख्शदा है। जिहड़े उस प्रभु दे रंग दे विच रते ने उन्हां दा संग बख्श दिंदा है। जदों मालिक दया करता है, टुटदे ने बंधन। टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। जिहड़े एक च रते ने उस प्रभु दे नाम दा गूढ़ा रंग जिन्हां नूं चढ़ गया है, फिर ऐसे साधु जनां दा संग हुंदा है जिन्हां दे मालिक बंधन तोड़ने चाहुंदा है, जिन्हां ते दया करदा है। फिर एक ही सेवा दे विच जीव लगता है, फिर उसकी सेवा करता है जिहड़ा सारियां च वसदा है। जिन्होंने महाराज समझाउंदे ने, टहल करो तां एक की, टहल करो तो एक की, जाते बिरथा न कोई। भी जिते कोई खाली नहीं, जिते कोई बिरथा नहीं है। मन तन मुख ही है बस है। मन विच भी मुख ते भी बोलता है, हिरदे विच भी वसदा है।
जो चाहो सो होए। फिर इत्थे मन दे वास्ते मन जो चाहुंदा है इसनूं प्राप्त हुंदा है, क्योंकि मन ते भी वसदा है मुख विच। फिर दूजा है ही कोई नहीं है। पर कहते टहल महल तां को मिले, जाको साध किरपाल। हुण महल निज महल जिथे प्रभु वसदा है वो किस नूं मिलदी है? जिस ते साधु दया करता है। पर साधु दी संगत कदों मिलती है? जदों प्रभु कृपा करता है। टहल महल ताको मिले, जाको साध दयाल। साधु संगत तो बसै, जो आपन होए निहाल। फिर कहते जाप दया करता है, आप खुश होंदा है। फिर साधु जनां दी संगत, क्योंकि उत्थे भी आप है, साधु दे हिरदे च वसदा है, तो उन्हां दा संग देंदा है, ते उत्थे आप ही साधु दी रसना तो अपना ज्ञान देंदा है। इस करके समझाउंदे ने, टोहे टाहे बहु पवन। मतलब कहते बहुत टोहे सारे पासे। साधु संगत तो बस है, जो आपन होए निहाल। टोहे टाहे बहु पवन, बिन नावे सुख नाहे। पर नाम तो बिना त्रै भवनां दे विच सुख नहीं है। नाम है चौथे पद विच। इस करके इत्थे जीव सारा कुछ करके देख लेंदा है, संसार दे रस भी भोग के देख लेंदा है, संसारिक पदार्थ भी देख लेंदा है। इत्थे तक फिर पुण्य दान करके संसार दियां बड़ियाइयां देख के भी सारा कुछ जदों कर लेंदा है, पर फिर भी सुख नहीं मिलता, मन शांत नहीं होता। क्योंकि इन्हां कम्मां दे विच मन की शांति नहीं हुंदी, मन की संतुष्टि नहीं हुंदी। मन की संतुष्टि हुंदी है नाम दे विच। मन नूं सुख मिलता है नाम द्वारा। टोहे टाहे बहु पवन, बिन नावै सुख नाहे। टला जाम के तूते, जो साधु संग समाहे। पर जिहड़े साधु जनां संग करके ज्ञान लैके समाउंदे ने, मन जाके मालक समा जाता है ज्ञान लैके, वो फिर जम उस तो जम दूत ने जड़े वो टल जाते ने। फिर जम दूत उस दे नेड़े नहीं आउंदे, उसका लेखा नहीं हुंदा, लेखा खत्म हो जाता है। इस करके समझाउंदे ने महाराज कि ये फिर साधु जनां दा संग करके ही सानू सहज दा सोझी आउंदी है। सहज मिलियो पार ब्रह्म ने संग। फिर सहज प्राप्त हो जाता साधु जनां संग करके। फिर मन किस दा संगी हो जाता है? पार ब्रह्म दा। माया तो रहत हो के, क्योंकि माया त्रै गुणा दे विच है, परमेश्वर चौथे पद विच है। फिर प्रभु दा संग हो जाता है, सहज दे विच हो जाता है। माया तो ध्यान टुट के ते उस मालक जुड़ जाता है। फिर ये सारा जो रूप है उस हरि दा रूप हो जाता है। सहजे गिरम सहज उदासी। चाहे घर विच है, चाहे घर तो बाहर है, इदा ही चाहे मन ध्यान अपने निज महल दे विच है, चाहे सच्चे घर विच है, जिथे भी है, सारे पासे सहज ही है, दूजा है ही कोई नहीं है। सहजे दुबदा तन की नासी। सहज प्रगट हो जाता है, दुबदा खत्म हो जाती है, दुचित्ती खत्म हो जाती है। फिर दूजा नहीं रह जाता, एक ही मालिक है, सहज ही सहज है। जिथों आप पैदा होए हैं सारे ही, आप सारे किथों पैदा होए? सहज तो। इस संसार किस तो पैदा होया है? सहज तो। इस करके फिर सहज ही सानू नजर आउंदा है।
सस्सै सब जग सहज उपाया। कहते सारा जग किसने पैदा किया? सहज ने। चौथे पद तो सस्सै सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति। त्रै भवनां दा शरीर है, ये संसार है ते इहदे विच जोत है। शरीर दे विच जोत है तां इस शरीर दे विच त्रै भवन ने, नहीं तो शरीर नाश हो गया तो मन ये त्रै भवनां नूं भी छड़ जांदा है। फिर किसी जून नहीं चाहुंदा है, फिर त्रै भवनां दे विच आउंदा है। जिन्हां दा जी नाम नाल जुड़ जांदा है वो फिर दोबारा त्रै भवनां दे विच नहीं आउंदे, क्योंकि फिर सहज दे विच ही वासा हुंदा है। सहज कै जाकै सहज मन पया आनंद। जिन्हां नूं सहज प्रगट हो जाता है तो जिन्हां नूं मन नूं आनंद आ जाता है सहज दे विच, ताको भेटिया परमानंद। तो समझ लो भी उन्हां नूं प्रभु दा मिलाप हो जाता है। ये प्रभु दी दया दे नाल हुंदा है, क्योंकि ध्यान माया तो तोड़ के सहज दे विच वसना, उस दे हुक्म दे विच रहना, भय दे विच रहना ते उस दा दिता लेना, फिर जाके ऐसी कृपा करता है कि दुख सुख खुशी गमी हर्क सोग इदा ही मान अपमान इदा हानि लाभ, ये सारा कुछ जो है सम हो जाता है। सहज अमृत पियो नाम। सहज दे विच ही जिवें तन ये संसारिक भोजन लैंदा है, मन दा भोजन नाम है, प्रकाश है। प्रकाश च रहिंदा, सहज च रहिंदा है, सहज दे विच ही तृप्त रहिंदा है। सहजे कीनो जी को धन। जे दूजिਆਂ ਨੂੰ भी कोई ज्ञान दिंदा है त्रै गुणा दे विच नहीं, सहज दे विच चौथे पद विच ही, क्योंकि उत्थों इस बिना मालिक तो ते नाम तो बिना सब किश मैला है। हर बिन सब किश मैला संतो। हरि तो बिना उसके नाम तो बिना सब किश मैला है। इस करके जो भी आपां लेना है मन वास्ते वो सानू सहज विचों ही मिलता है। चौथे पद विच ही मन का सारा खजाना है। उत्थों ही जीव आप भोगदा, उत्थों दूजिਆਂ ਨੂੰ दसदा भी इत्थे जाओ, इत्थों ही सानू मिलेगा। इत्थे ही साडा सारा मन का जिहड़ा भोजन है, मन का इशनान है, मन का कपड़ा है, मन का घर है, ये सारा कुछ सानू सहज चो मिलेगा। चौथे पद विचों प्राप्त होएगा। उत्थे ही ज्ञान मिलता है, क्योंकि त्रैगुणी विचारां तो सारा जीव सुणाउंदे ने, करदे ने, कर सकते ने, पर यह जिहड़ा सहज दा दान है, सहज दा ज्ञान है, ये तां ही दिता जा सकता है जो उस प्रभु की कृपा होवे। फिर ही ऐसी दृढ़ता बनती है, फिर ही सारा कुछ हो सकता है जदों फिर आप परमेश्वर दया करता है। जाग को दया मया प्रभ सोए। सहज कथा में अमृत रसिया। फिर जिहड़ी सहज कथा है वो सहज कथा ही अमृत है, वो ही रस है, क्योंकि सारा ध्यान मार्ग है। सहज कथा कोई बोलण दी नहीं है, ध्यान मार्ग है। कला बोलिया ते कन्ना नाल सुन तक सहज कथा नहीं है, नाल अखां नाल देखना भी हुंदा है, फिर उस दे नाल रतना भी हुंदा है। अंतर गुर आराधना जे जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रते अंदर गए पाइए ठाओ। इस करके सहज कथा जिहड़ी है वो फिर प्रकाश ही है। प्रकाश तो विच ही आपां सारा कुछ करना हुंदा है। चौथे पद विचों दरगाह दे विचों संसार चों इत्थे कुछ भी नहीं आपां लेना, मन वास्ते कुछ भी नहीं है। सहज कथा में अमृत रसिया, ताका संग
अविनाशी वसिया। क्यों होंदी है सहज कथा अमृत? क्योंकि वही जीव करता है जिन्हां दे संग आप मालक वस जाता है। वही फिर इस कथा नू करता है जी। ये अमृत बचन फिर वो बोल सकता है जो अमृत है। एक शब्द का ज्ञान है, अमृत एको शब्द है, गुरमुख पाया जाए। पर वही जदों उन्हां दा सदा संगी हो जाता है, सदा अंग संगे आप अंगं बेपूते, जो कदे नाश नहीं होता ते जेड़ा कोई शरीर नहीं है, जो प्रकाश रूप है, वो सदा अंग संग होता है। सहजे आसन अस्थिर पाया। सहज दे विच जिहड़ा आसन है, क्योंकि सहज स्थिर कर है, इधर चलनहार है, वो सच्चा कर है, स्थिर कर है, जिथे बैठ के प्रभु साडे कार्ज पूरे करता है। जदों असीं बैठ जाते हैं उत्थे, फिर आप साडे मन के कार्ज सवारदा है, फिर सानू करन दी लोड़ नहीं पैंदी। जदों असीं अपने घर विच हां, जदों इत्थे बगाने देश विच हां, फिर सानू सारा कुछ आप करना पैंदा है। जिवें आपां देखदे हां, जदों असीं अपने घर विच हुंदे हां, माता पिता कोल बच्चे हुंदे ने ते उन्हां दे कपड़े भी माता धो के दे देंदी है, उन्होंने भोजन भी माता तैयार करके देंदी है। पिता भी कर्म करता है, कमाउंदा है कि मेरा धी पुत खाएगा, इस करके उत्थे फिर उसनूं कुछ करना बहुता नहीं पैंदा। जिवें संसार दे आपां देखदे कि जेड़े इत्थों प्रदेश चले जाते ने, उन्होंने हर एक काम आप करना पैंदा है, जेड़े माता तो पिता तो दूर ने। इदां ही समझाउंदे ने कि फिर जेड़े उत्थे आसन ला लैंदे ने सच्चे घर दे विच, सहजे अनहत शब्द बजाया, थिर हो जाता है मन। उत्थों ही फिर गुर शब्द का ज्ञान दिता जाता है, जिहड़ा अनहत शब्द है। निज महल दे विच कौन देंदा है? जिसने एक प्रभु नूं पहचानिया है, जिसनूं महाराज समझाउंदे ने, समझाउंदे ने महाराज, गुरमुख एको एक पछाता, गुरमुख होए लखावे गो, गुरमुख जाए मिले निज महली, अनहद शब्द बजावे को। जी जंत सब श्रेष्ठ उपाई, गुरमुख शोभा पावे गो, बिन गुर भेटे को मुक्त न हो पावे, बिन गुर भेटे को मुक्त न होवे, आए जाए दुख पावे को। उत जाके निज महल दे विच, सहज दे विच, उत्थों ही अनहद शब्द का ज्ञान, गुर शब्द अनहद शब्द जिन्हों बारे समझाउंदे ने, अनहद बाणी गुर शब्द जानी, उत्थों गुर शब्द का ज्ञान दिता जा सकता है सहज दे विचों। सहजे रुण चुणकार सुहाया। सहज दे विच ही जो प्रकाश दी रुण चुण है, जिवें बरखा हुंदी है, इदां ही मालक जिहदा प्रकाश है, जिवें आपां क्योंकि बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपां समझण दी कोशिश करते हैं। जिवें सानूं समझाया गया है कि एक बरखा दी झड़ी लग जाती है, झड़ी तो एक दिन दी, 2 दिन दी हो सकती है, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, लेकिन इत्थे सदा ही रुण चुण है। प्रभु के सिमरन अनहद चुणकार, प्रभु दे सिमरन दे विच फिर अनहद दी चुणकार है। सहजे रुण चुणकार सुहाया, ताकै कर पार ब्रह्म समाया। ये सारा किन्हां तो हुंदा है? जिन्हां दे घर दे विच, हिरदे दे विच, कोई संसारी घर नहीं है। हिरदा जिहड़ा साडा, जिन्हां दे हिरदे घर विच पार ब्रह्म बसिया है, समाया है, एक दूजे दे विच समाए ने,
उत्थे फिर ये शब्द ये अवस्था बनती है। पर ताई बनती है जे उस प्रभु की दया होंदी है, उसकी कृपा होंदी है। सहजे जाको परयो कर्मा, सहज दे विच ही जदों कृपा करता है फिर कर्म दे विच लाउंदा है। कर्मखंड ते सचखंड एक ही पौड़ी है, उत्तों फिर आप ही प्रभु सानू कर्म दे विच लाउंदा है। सहजे गुर भेटो सच धर्म, सहज दे विच ही गुर प्राप्त हुंदा है ते सच्चा धर्म भी सानू सच भी प्राप्त हुंदा है। फिर धर्म, क्योंकि फिर असी धर्मी जीव हो जाते हैं। सच्चा धर्म बोलिए सच, झूठ धर्म ना बोलिए। झूठ नहीं, क्योंकि लोग झूठे भी धर्मी हुंदे ने। सच्चे सच्चा धर्मी किहड़ा है? जिहड़ा सच दे विच वस के कर्म करता है। त्रै गुणां दे विच वस के कोई धर्मी भी है, उसनूं भी धर्मी नहीं मन्निया जांदा, क्योंकि जब तक प्रभु नूं मिले ही नहीं, जे असी धर्म दे कर्म भी करते हाँ वो भी साडे व्यर्थ ने, जब तक असी प्रभु नूं जाणिया नहीं है। जदों प्रभु नूं जान लिया फिर ही साडा असली सच्चा धर्म है। जाके सहज भया सो जाने, पर अवस्था जड़ी है मेरे कहते जिन्हों प्राप्त हो जाता है, जिहड़ा सहज विच वस जाता है वो जानता है। पर अवस्था कदों है? जदों दया कृपा हुंदी है। नानक दास ताका कुर्बान है, मेरा समझाते ऐसे जन, ऐसे प्रभु दे जेड़े जीव ने जिन्हां ते कृपा करता है उन्हां तो सदा कुर्बान जाते हैं। पर ताई हुंदा है क्योंकि अपने आप नहीं हुंदा। इस दे वास्ते सब तो पहला तो सानू प्रभु दा प्यार, हुक्म, इहदा चीज़ां नू अपनाउणा पैंदा है। जदों इस करते हाँ फिर प्रभु दया करता है, खुश हुंदा है। फिर ऐसी साडे अंदर दृढ़ता पैदा कर देंदा है कि सानू अपना रूप ही बना लेंदा है। ये दया है मालिक दी। सो गुरमुख प्यारिओ, किवें आपां इस दे पात्र बन सकते हैं? ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही जीव, क्योंकि साडा सारिਆਂ ਦਾ एक पिता है, एक माता है, एक ही है, एक दे असीं सारे बच्चे हाँ। इस करके वो सानू सारिਆਂ नू एक नज़र नाल देखता है। किते अपने मन विच ये ना आ जावे कि प्रभु उस दे ही कृपा करदा, दूजे ते नहीं। सारे भी आप उस दे पात्र बन सकते हैं, पर उस वास्ते जो उसनू पाउंदा है उवें आपां नूं चलना पैंदा है। फिर आपां उसनू घट घट दे विच देख सकते हैं। आओ वही आपां अभ्यास करते हाँ, दृढ़ करते हाँ, ताकि खुश हो जावे, साडे मन विच वस जावे, सदा असीं उस दे विच रहिए। साडा एक खिन पल भी विछोड़ा ना होवे। जद देखिए विच कदे भी विछोड़ा ना होवे। उहदे विच ही वसना, उहदे विच ही सौना, उहदे विच ही हसना, जो भी है उस दे विच ही है। कुछ भी कर दे उस दे विच ही। इस दे आपां पात्र बन सकते हैं। फिर वो दया करता है, कृपा करता है, फिर सानू ऐसी दृढ़ता बख्शिश कर देता है। सो आओ किवें खुश हुंदा है। आपां सब तो पहला कि मन नीवा हुंदा है। सब तो पहला निवना है। निवन सो आखर।
खवन गुण जेह मनिया मंत। आओ निवना मन का की है कि मन नेत्रा च है, निव के किथे जाना है जिथों स्वास देता है। आ सब तो पहला आ ज्ञान है। इस पॉइंट से आना है मन ने कि जितों स्वास दे के पाल रहा है सहज गुफा दे भी जाने वास्ते। इत्थे आपां बसना है, लेकिन प्रभु दे दर ते एक दृष्ट होके इस नूं ध्याना है, एक दृष्ट होके, एक चित होके। एक चित दा आपां नूं किवें पता चले कि असीं एक चित हो गए कि नहीं। उसके वास्ते आप समझना है कि जदों असी दोनों नेत्रों में इस पॉइंट ते देखते हाँ, इत्थे दृष्टि फोकस करते हाँ, तो आप देखना है कि सानू नक दिसदा जां नहीं। जे तां आपां नूं इत्थे देखण नाल नक नज़र आउंदा है, फिर असी एक दृष्ट नहीं हाँ, दो दृष्ट हाँ। जे नहीं नज़र आउंदा फिर एक दृष्ट हाँ। जे नज़र आउंदा है फिर आप देखना है कि इस पासे आउंदा है, सज्जे पासे जां खब्बे पासे जां दवले। फिर आप परखना कि असी तमोगुण ते ज़्यादा विचरदे, रजोगुण ते जां सतोगुण ते। इन्ना आपां परखना है अपने आप नूं। जे नक नज़र नहीं आउंदा फिर एक दृष्टा हाँ। उस तो बाद फिर आपां अगे उसके पात्र बनने वास्ते अगे निभना है मन एक दृष्ट होके। आओ आप पहला उस प्रभु के चरणों के विच एक बारी चलना सीखिए, फिर आप हौली हौली पहला नीचे, फिर ज्यों ज्यों प्रकाश हुंदा आप ध्यान उत्ते चुकते जाते हाँ। आओ पहला दृष्टि नेत्र सम करके, दृष्टि इत्थे फोकस करके अपने आप नूं समझ लो। पहला इदां इस पॉइंट ते अपने आप नूं देखांगे, नाले थोड़ा परखांगे कि ध्यान साडा जे दो दृष्ट है किस पासे, अपने आप नूं परखांगे एक दृष्ट हाँ। तेरे जेड़े जी पहला कमाउंदे ने वो अपने रूप नूं देखणगे ते अखी परखना है कि किते सानूं मैल तां नहीं लगी, साडा मुख चमक रहा है। फिर इस तो बाद मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लैके आओ, फिर आपां सामने देखना है। फिर मैं आप जी नूं आवाज़ देवांगा कि ध्यान मस्तक के सामने लै जाओ, फिर पलका उत्ते चुको। फिर आवाज़ देवांगा आप जी नूं कि ध्यान सामने लैके आओ, फिर सामने लैके आना। फिर जो कहांगा सम करके देखो, फिर इस पॉइंट ते सम करके देखना है। जे कोई नवा जीव जिसनों पहला नक दिसता, उसने फिर वापस आके देखना है। जे उसनों नक दिसनों हट गया तो एक दृष्ट हो गया। तो फिर अगे आपां ध्यावांगे जिमें समय मुताबक नीचे जिथे जिथे जिमें समा होया उमें आपां ध्यान लगावांगे। सुहागुण प्यारिओ नेत्र सम करिए, अपने आप नूं थोड़ा परखिए। सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखो जी।
मस्तक दे सामने लै जो पलका उत्ते चुको। फिर सामने लेके आओ ध्यान। फिर सम करके देखिए नकते अपने आप को पहचानिए, देखिए। ध्यान नीचे लै जाओ हुण। नीचे आपां जिथे बैठे 2-3 फुट अगे अपने तो ते जो भी थले है विछया होया चादर है, फर्श है, जो भी है उस तो थोड़ा ऊपर 5-6 उंगल ऊपर देखने की कोशिश करनी है। इत्थे सानू एक पानी की तरह प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा। आपां नूं इदां महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपां सरोवर दे विच बैठे हाँ। अमृत सरोवर, अमृत जल दे विच। क्योंकि जल संसार चों नहीं मिलता, उस परमेश्वर तो मिलता है जिस दे विच अपने मन ने इशनान करना है। और सम करके देखिए अपने आप को।
फिर नीचे ले जो ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जो ध्यान।
सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। नीचे ले जो ध्यान। फिर नीचे ले जो ध्यान। सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਿਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਾਈਂ ਜੇ ਮਨ ਸਗਲ ਦੀ ਰੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। दुख सुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। सुआओ प्यारिओ, इदां अपने आप नूं जनाउणा नहीं, उस प्रभु दे हुक्म दे विच रहना है, भै दे विच रहना है ते प्यार पाउणा है, मन नूं नीवां रखना है, तां कि ऐसा मालिक किरपा कर देवे कि सानूं ऐसी दृढ़ता बना देवे कि जो कुछ भी करिए असी उस दे विच ही करिए।
ਚਾਹੇ ਸੌਈਏ ਜਾਗੀਏ ਜੋ ਵੀ ਖਾਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।